Guys, welcome back. Today in the previous class we have learned about how to calculate the goodwill amount and how to distribute. We have learned few of the general entries, how to pass the general entry in the few of the cases. Okay, if a new partner is going to bring goodwill and the capital amount in cash. Okay, so see that in question number 21 we have already solved it. Okay, now the question number 22 I'm going the further videos to make. Okay, in this case children, actually what is given, there are two partners P and Q, 2:1 is the ratio is given. They admit R into the partnership for 490 in profit which he acquires equally from P and Q. R brings in cash 2,50,000 as capital and rupees 1,80,000 as goodwill. So pass general entries and find out the new profit sharing ratio. So see, look at this children. In this question what we have to actually do, see, P and Q are partners. Okay, their old shares according to the old ratio will distribute 2:1 is the ratio. So if you'll see, so 2/3 will be the share of P and 1/3 will be the share of Q. Okay, and further information if you will see that here R is admitted for 4/9 share, which will acquire equally from P and Q. He will acquire equally from P and Q. And further information about the goodwill and the capital he has also brought. So goodwill amount is given, that is what 1,80,000, and the capital as well is given, that is what 2,50,000 children. So this is the case we are going to solve it in the become partner. Okay, so as you know that if a new partner enters in our partnership, okay, we have to calculate the sacrificing ratio, okay, and the new profit sharing ratio. But here we have to calculate NPSR and pass some general entry we have to pass over here. Okay, this is an important question from the board exam point of view. See, first of all, we'll do the calculation as per the requirement. Okay, so R will acquire from P. So equally he will acquire, see the share 4/9 shares is 4/9 into 1/2, like that. R will acquire from Q 4/9 into 1/2. We'll solve it. Okay, 2 to 4, 2 to 4, here 2/9 and 2/9 share he will acquire from P and Q as well. See, now children, we will find out the new profit sharing ratio. We have to subtract from them. Okay, so in these are, okay, first of all calculate P's new share. P's new share, if you will see that the old share was 2/3. Okay, and he sacrificed 2/9, so minus 2/9 will do it here. We'll take the LCM. So LCM will be 9, 3 to 6, 2. So 4/9 will be the new share of P, like that. You see, new share actually it is. Okay, and old share was 1/3, and the sacrifice share is 2/9. Okay, we'll take the LCM, 3 minus 2, that will be 1/9. Okay, so these are the NPSR, and see the R share that is already given, that is your 4/9. Okay, no need to take the LCM because all the denominators are same. So we'll take the NPSR, we'll see that NPSR will be P share is 4, so 4:1:4. This is NPSR. Okay, so this is NPSR children, and you'll find out the sacrificing ratio. The sacrificing ratio will be calculated like that. Sacrificing ratio, you know how to calculate. Okay, these shares will be sacrificed by P and Q as well. So the sacrificing ratio will be 1:1 only. See, these are the parts of the sacrifice because R will acquire from it. It means that P will sacrifice this. So R will acquire from Q. It means that Q will sacrifice this part. So the sacrificing ratio will be 2/9. Ratio 2/9, it means 1:1. 2:2. 2 cancelled. So 1:1. So children will have to pass the general entry in this case if the new partner is going to bring that capital and goodwill as well. So see, bank account debit, general entry I am passing out over here.
In this case, children, we have to pass only 2 journal entries. Okay. So how to pass? Okay. So journal entry will be passed out. First of all, bank account debit to capital account to goodwill account. Okay. So this is what to goodwill account will pass over here, and we have to write the narration of this being new partner. Okay, new partner being, so we will write who's the partner. New partner is R, so R's capital account, goodwill account. Okay, so being new partner means R brought in cash and goodwill. ठीक है, तो ये पहली एंट्री हो जाएगी टू आर कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट. ओके, सो दैट आर हैज ब्रॉट द गुडविल अमाउंट एज 1,80,000. ओके, सो 1,80,000 विल राइट ओवर हियर. ओके, यहाँ पे मैंने एक चार्जी कॉलम बना दी. देखिए, ओके, यहाँ पे 1,80,000 लिखा मैंने गुडविल के सामने, और जो कैपिटल लेकर आया था पार्टनर ने बुलाया था 2,50,000. इन दोनों को ऐड किया, 4,30,000 आ गया बेटा. ये 4,30,000 मैंने यहाँ पे डाल दिया. उसके बाद मुझे क्या करना है बेटा जी, गुडविल अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशियो में. तो उसकी एंट्री हो जाएगी कि प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर कौन सा था हमारे पास, पी था, पी कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट. ये नरेशन हो जाएगी बेटा इसकी बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो. देखो बेटा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में करेंगे हम 1,80,000 को. सैक्रिफाइसिंग रेशियो जैसे कि मैंने आपको बताया था वो 1:1 था, तो 90,000 यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा अमाउंट. ओके, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 22. ओके, दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 22. एज यू नो दैट addition of partner we are doing. Okay, for more examples we will take children to sort out the mistakes. Okay, sort out the problems. Okay, see the next question now children. In 23, so what is the problem into it? हम पार्टनर से चेंज कर लेते हैं. ओके, देख लेते हैं, यहाँ रेशियो चेंज कर लेते हैं. ठीक है, देखते हैं यहाँ पे क्या चेंज है. हमारे पास गुडविल और कैपिटल लाया है नहीं लाया है पार्टनर. ओके, सी अब देखते हैं बेटा, हमारे पार्टनर हमारे पास इस क्वेश्चन में बेटा एक्स और वाई है. ओके, 4:3 के रेशियो में शेयर कर रहे हैं, तो 4/7 3/7 हो जाएगा. ओके, तो ये इन्फॉर्मेशन पहले आप लिख लिया करिए ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. ठीक है, और लगा है कि भाई जॉइंट्स पार्टनरशिप फॉर 2.7 शेयर ऑफ द प्रॉफिट. तो जेड ने जेड एडमिट हुआ है और that is 2/7 share. 2/7 शेयर के लिए आया है बेटा जी. तो यहाँ पे गुडविल अमाउंट में गिवन है. ओके, देखिए पहले इसने कुछ बोला हुआ है, हमें जो ये रेशियो बोला हुआ है इसके अंदर क्या बोला हुआ है कि 2/7 शेयर के लिए जो जेड एडमिट हुआ है कि वो पी से जो एक्वायर करेगा बेटा जी, एक्स से एक्वायर करेगा 1/4. तो जेड विल एक्वायर फ्रॉम एक्स Z and Z will acquire from Y. तो उसने बोला है बेटा जी कि वो जो है 1/4 शेयर जो है वो Y से शेयर करेगा और 2/7 शेयर वो X से करेगा. 2/7 जो किससे करेगा, एक सेकेंड, इसमें 2/7 शेयर के लिए आया है तो फ्रॉम X जॉइंट्स पार्टनरशिप फॉर 2/7 शेयर इन द प्रॉफिट और विच ही एक्वायर 3/4 फ्रॉम X. तो 3/4 जो है वो X ले रहा है. ओके, और 1/4 जो ले रहा है वो Y से ले रहा है. 4th का है, उन्होंने कहा है कि इसका 3/4 जो ले रहा है वो X से ले रहा है और इसका 1/4 वो Y से ले रहा है. तो देखिए इसका रेशियो जो निकलेगा वो ये निकल जाएगा 3:4. ठीक है, निकालते हैं. देखिए 3/4 इंटू 2/7 ये आएगा 6/28 इंटू 2/7 ये आ जाएगा आपका 2/28. ओके, हम बात करते हैं X का न्यू शेयर. X न्यू शेयर पहले 4/7 था, 6/28 माइनस करेंगे 28, 4 4 16, 6, 10/28
ऐसे वाई के इनिशियल की बात करते हैं, पहले था 3/7, यहाँ पे 2/28 है। एलसीएम ले लेते हैं बेटा, एलसीएम 28 आया, 4 3 या 12, 2 10/28 यहाँ पे भी आया। ओके 3/7 माइनस 2/28 है, और 1/4 बोला था, 3 2 6 हो गया, 1 2 128 हो गया, तो यहाँ पे आ गया 6/28 माइनस किया हमने, तो 4/7 से 7 5 24 16 6 10/28 7 5 24 से 12 2 28 10/28, ये दोनों ही 10/28 यहाँ है। देखिए जेड का निकालते हैं जरा, जेड का शेयर हमें गिवन है कितना है, वो है 2/7, ठीक है। तो अब निकाल देते हैं एनपीएस आर, एनपीएस आर निकालेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो 10:10:7 5 24 2 8 आ जाएगा, ठीक है। तो 10:10:8 आया है, इसको शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, 2 4 8 2 5 10 2 5 10, तो 5:5:4 आया, देखिए बेटा। ओके तो ये दोनों रेशियो हमारे इक्वल आ गए, ठीक है। तो ये एनपीएस आर आ गया है। ओके आई होप यू अंडरस्टूड दिस। आफ्टरवर्ड्स हमें अमाउंट जो गिवन है बेटा जी गुडविल की, वो हमें कहा है कि 1,20,000, और जो कैपिटल है वो 3,10,000 की, तो एंट्री करते हैं। देखिए बैंक अकाउंट डेबिट, जो कैपिटल लेके आया है टू जेड आया, तो जेड कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट, ठीक है। उसके बाद हम लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, टू एक्सेस कैपिटल अकाउंट, टू वाइस कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना। तो ये देखिए अमाउंट हमारे पास आ रही थी, ठीक है। तो गुडविल जो हमारे पास थी बेटा वो थी गुडविल थी 1,20,000 की, तो यहाँ पे 1,20,000 की देता हूँ। कैपिटल जो थी वो थी आपका 3 लाख की, तो 4,20,000 हो गया। अब इस 1,20,000 का हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, वो भी सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपको पता है कि कितना होगा, ये जो हमारा जितना आया था यहाँ पे देखिए 6:2, यानी कि 2 3 6 2 3:1 का रेशियो हमारे पास सैक्रिफाइसिंग आ रहा है, जितना हमने एक्वायर किया था, ठीक है। निकालने के लिए आपको यहाँ पे है, निकाल लीजिएगा, ठीक है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है, चाहे तो आप ओल्ड माइनस न्यू करके निकाल सकते हैं, या फिर जितना एक्वायर किया है जेड में वही हमारा रेशियो हो जाता है। 6:2 2 2 3 6 3:1, तो 3:1 यानी 3/4 आएगा एक्स के पास, 1/4 आएगा वाई के साथ, देखते हैं, ठीक है। तो 33 या 90,000 और 30,000, ये अमाउंट बेटा जी हमारे पास आ गए, देखिए। अब इसने बोला बेटा जी हाफ ऑफ द गुडविल इज विथड्रॉन बाय द पार्टनर्स, ठीक है। तो इसके जो हाफ था गुडविल का, उसका हाफ जो है पार्टनर ने विथड्रॉ कर लिया है। तो विथड्रॉ की एंट्री जो होती है बेटा जी हमारी, वो विथड्रॉ की एंट्री होती है ओल्ड पार्टनर्स, यानी कि एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट, जो भी आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए कितना अमाउंट निकाला है, आप लिख देते हैं। हाफ निकाला है, गुडविल का अमाउंट 1,80,000 था हमारे पास, 1,20,000 था, इसका हाफ लेगा 60,000, तो 60,000 विथड्रॉ किया है। अब कितना कितना हो जाएगा, इनके ऐसे रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। ओल्ड पार्टनर की जो कैपिटल आती है उसको हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देते हैं, यहाँ लिखिए नरेशन लिख दीजिए, बीइंग हाफ ऑफ द गुडविल is withdrawn by the old partners in their sacrificing ratio, ठीक है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो में करेंगे जितना उन्होंने सैक्रिफाइस किया, ओके। तो देखिए यहाँ पे करते हैं 60,000 का ओल्ड रेशियो हमारा 3:5, आपका सैक्रिफाइसिंग 3/4 1/4 हो जाएगा यहाँ पे, तो 15 या 45,000 इसमें आ जाएगा, देखिए, और 15,000 आपका इसमें आ जाएगा। ये देखिए बेटा ये हमारा क्वेश्चन नंबर 22, ओके। अब देखिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, 23 क्वेश्चन हो गए बेटा हमारे। अब देखिए कंटिन्यू करते हैं। 24th में भी आपका ऐसे ही मिलता है तो क्वेश्चन है, आप कीजिएगा, अपने आप ट्राई कीजिएगा, ओके। 24 25 में भी बिल्कुल सेम टू सेम करना है, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ओके। बस थोड़ा सा देखिएगा, इसके अंदर प्रॉफिट दे रखा है फॉर द फर्स्ट ईयर होता है, न्यू पार्टनरशिप अमाउंट टू 4,80,000 प्रॉफिट गिवन है, तो नेसेसरी जनरल एंट्री है पास करनी है, ठीक है। तो प्रॉफिट को जो हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बेटा जी, हमारा फर्स्ट ईयर का जो प्रॉफिट होगा, ठीक है, हमें तीनों को ही डिस्ट्रीब्यूट करना होगा उसको,
ठीक है, और न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो में कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू। देखिए एंट्री करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। देखिए question number 25 children. In this question there are two partners, okay, Anju, Manju. These are all partners. They were sharing profit and losses in ratio 7:5. अब इनके शेयर की बात करें तो 7/12 हो जाएगा, 5/12 हो जाएगा, ओके। अब who is admitted? Meenu is admitted. एज अ मैनेजर, ओके। तो इसमें कंफ्यूजन बताइएगा, ठीक है। मैंने देखा मैनेजर इनटू द पार्टनरशिप व्हिच इज टू गेट सिक्स्थ शेयर इन द बिजनेस। तो उसका जो है वो आया है 1/6 शेयर के लिए आई है, 6 शेयर माने 1/6 शेयर, ओके। अब जो एक्वायर करेगी बेटा जी वो क्या है, पहले उसने बोला हुआ है कि उसकी कैपिटल दे रखी है हमें, ठीक है, और गुडविल दे रखी है, ठीक है। 1/6 शेयर ऑफ गुडविल विच शी एक्वायर, ठीक है, ओके, एंड विच शी एक्वायर 124 फ्रॉम अंजू एंड 1/8 फ्रॉम मंजू। तो 1/6 शेयर की जो आई है बेटा जी वो देखिए मीनू विल एक्वायर फ्रॉम अंजू और मीनू विल एक्वायर फ्रॉम मंजू, ठीक है। तो देखिए इसमें बोला है बेटा जी पूरे शेयर को उसने कहा है कि 1.24 ये रखा है बेटा जी। तो इसमें हमें कंफ्यूजन होने की जरूरत ही नहीं है कि डायरेक्ट ही दे रखा है पूरा पार्ट, तो 1.24 को डायरेक्ट माइनस करेंगे। इसमें 1.24 बोला हुआ है और ये 1/8 बोला हुआ है, ओके। तो इसमें हमें कंफ्यूजन होने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्ट ही माइनस करेंगे इसके अंदर। तो न्यू शेयर निकालते हैं, देखिए पहले सेक्रीफाइसिंग कितना आएगा, देखिए सेक्रीफाइसिंग निकाल लेते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए हम कैल्शियम ले लेंगे 1:3, ठीक है ना। ये 1:3 आ गया हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ओके। अब देखिए हम निकालते हैं एनपीएसआर निकालने के लिए जो एक्वायर वाला पार्ट है इसमें डायरेक्ट माइनस कर दीजिए, ठीक है। पहले एनपी को निकालते हैं, 7/12 में से 1/24 माइनस करेंगे, एलसीएम 24 आएगा, 14 - 1 13/24 हो गया ये। इसी तरह से मंजू का जो आएगा सॉरी 5/12 था, इसमें 1/8 करेंगे 24 10 3 7/24। अब मीनू का देखते हैं बेटा जी, मीनू का कितना आया, देखिए मीनू का शेयर हमारे आया था 1/6 के लिए आई थी, ठीक है। तो एनपीएसआर क्या हो जाएगा इनका एलसीएम लेकर के जी पूरी एलसीएम आ गया 13:7:4, तो ये आ गया हमारे पास एनपीएसआर, ओके। तो इस तरह से हमारा जो है एनपीएसआर इसके अंदर कैलकुलेट हो गया बेटा, देखिए। अब इसके बाद हमें एंट्रीज पास करनी है, एंट्रीज में वही सीन है, ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूँ पहले। बस ध्यान रखिएगा इसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन एंट्री हो रखी है, तो जो प्रॉफिट होगा हमारा फर्स्ट ईयर का उसको हमें तीनों में बांटना होगा और न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। तो पहली तो 2 एंट्री सेम ही रहेंगी आपकी जो हम चल रहे थे, देखिए क्या है, कैश या बैंक जो भी लिखते हैं आप, अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, किसी कैपिटल मीनू की, मीनूज कैपिटल अकाउंट टू गुडविल अकाउंट। दूसरी एंट्री पीएनजी क्योंकि प्रीमियम फॉर गुडविल, ओके, अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स को बोलते हैं अंजूस कैपिटल अकाउंट टू मंजूस कैपिटल अकाउंट। तो कितनी आई है गुडविल, देखिए यहाँ डाल देते हैं मीनू की कैपिटल और गुडविल कितनी गिवन है हमें। कैपिटल गिवन है बेटा जी हमें 2 लाख की और 96 की हमें गुडविल है, ये 2 लाख की हो जाएगी और ये 96,000 की है, तो ये आएगा 2,96,000। अब हमें इस गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना है 96,000 को, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में करेंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशियो मैंने आपको बता चुका हूँ कितना है, 1:3 है, तो 1:3 के रेशियो में बांट देते हैं, देखिए 1/4 3/4, तो ये आएगा आपका 24,000 और ये आएगा 72,000। ये दीजिए आपकी जो एंट्री फिनिश होगी। अब हमें जो प्रॉफिट दे रखा है उस प्रॉफिट की एंट्री देखिए कैसे करनी है बेटा। प्रॉफिट की एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट,
ठीक है ना। अगर कुछ नहीं बोला है तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन बोलते हैं, कि आपको याद होगा टू अनयूज्ड कैपिटल अकाउंट, टू अनयूज्ड कैपिटल अकाउंट टू मीनयूज्ड कैपिटल अकाउंट। बेटा जो हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है वो न्यू प्रॉफिट बीइंग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड among all partners in NPSR न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इसमें हमें जो प्रॉफिट गिवन है बेटा जी वो है हमारे पास 4,80,000। 4,80,000 को आप जो है न्यू प्रॉफिट शेयर रेशियो में डिवाइड कर देंगे और एनपीएसआर में तो 13/24, 7/24 और 4/24 डिवाइड करते हैं इसको। ठीक है, तो क्या क्या मिलेगा अमाउंट यहाँ पे 20,000 एंड दिस 2,60,000। इसको करते हैं 20, ओके 20 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे 1,40,000 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा आपका 80,000। ठीक है, तो ये हमारे अमाउंट हो गए देखिए। ओके, ये हमारी एंट्री पास हो गई। So you will have to do children question till 34 children you can do on your own. Okay, if you have any kind of problem you can write in the comment section. Okay, till then thank you so much for watching and listening. If you have not subscribed my channel till now, please subscribe it and enjoy my channel. Thank you so much children.